admitted, Shatrupa, that this is a social crime. Rape is a social crime. Blame people for it. But don't ask questions to Mamata Banerjee. So why are you protesting, Shatrupa? Yeah, even, I'm very confused because firstly, Dipti, this is not the first time that we're hearing. We have to mute him because I can't hear myself. Can somebody... We can hear you well. Shatrupa, go on, please. Yes. You see, the first thing is that the whole issue about trying to normalize crime is not the first. This is not the first time that we're hearing this. Mamata Banerjee is characteristically completely, making insensitive comments down the last 13 years. This is the first time when rape was reported, or not even the rape. When Sandeep Ghosh said, somebody called up their parents and said that she had committed suicide. And yes. Sandeep Ghosh, the head of RG Court at that point of time, said that why was she there? What was she doing on night duty? He's the one who's supposed to have planned the roster, right? And then Mamata Banerjee goes and straight away talks to the parents and says that, maybe you should take some money. Don't pursue this. After all, the girl has died. What will happen now? Then she gets into this kind of a stance. Now she's on the road. We're not sure who she's protesting against. I mean, which of her many personality disorders she's because she's the chief minister. She obviously has multiple personalities. Apart from 6 ministries, she's the police minister. Being the police minister, her top cop, like you put it, yes. The police commissioner holds a press conference today, breaks down on the 14th night. I mean, when this rampage was happening. And Shatrupa, he clearly says in front of media that we were not able to assess this. He's also the same man, if you recall, Shatrupa, who had blamed the media. He said a malicious media campaign. Shatrupa, before I now come back to you, let me quickly get in Sayan and also Ajay ji into the conversation, and then Lalita also here. अब अजय जी, अब मुझे ये बताइए कि आप लोग डिसाइड तो करिए कि आप ममता बनर्जी को सपोर्ट करेंगे या उनके खिलाफ हैं। देश भी अभी ये जानना चाहता है। बहुत हो गया ये आपने मंकी बैलेंसिंग कर ली। राहुल गांधी 5 दिन बाद जाते हैं और बोलते हैं कि भाई जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन हाथरस में जो हुआ, कठुआ में जो हुआ वो भी गलत था। अब ममता बनर्जी का नाम लेके कहिए ना कि उनसे कोई भी हम आगे साठगांठ नहीं कर सकते जब तक ममता बनर्जी इस पूरे केस में एक्शन नहीं लेती हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की किसी भी बेटी और महिला के साथ अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो उसकी हम लोग निंदा करते हैं, ना उसके साथ हम होते हैं, ना कांग्रेस पार्टी होती, ना राहुल गांधी, ना खड़गे जी, ना हमारा कोई भी निंदा नहीं चाहिए अजय जी। अब देश को कड़ी निंदा नहीं चाहिए, निंदा भूल जाइए, एक्शन लीजिए सर। आप थोड़ा सा बीच में आप मेरा सुन लीजिए। नहीं, हम नेताओं की तो सुनते रहे अजय जी, इतने साल नेताओं की सुनते रहे हैं। आप लोग कड़ी निंदा कर देते हैं, फिर इंतजार करते हैं कि अगला कुछ ट्रेजेडी होगा, तब भी आकर कड़ी निंदा कर देंगे। लीजिए, देखिए, आपकी बात देश क्यों मानेगा? आपकी बात देश क्यों मानेगा? पुलिस कमिश्नर एक पद होता है और वो सरकारी कर्मचारी और अफसर होता है। उसने कह दिया कि ये मीडिया फेक कर रहा है और मीडिया फैला रहा है। तो आपको भी लगता है कि मीडिया गलत खबरें चला रहा है सर? भाजपा के साथ आपको लगता है कि जो रिक्लेम द नाइट प्रोटेस्ट हुआ वो सब गलत था? साथ मिलकर नैरेटिव फैला रहे हैं। ये नैरेटिव क्या नैरेटिव अजय जी बताइए, क्या नैरेटिव है इसमें? बेटी के साथ होता है तो वो भाजपा मुक्ति मोर्चे की महिला है, आप उस पर उठाती नहीं है। अरे अजय जी, अगर आप अपना पॉलिटिकल चश्मा साइड में रखेंगे ना सर, तभी इस प्रॉब्लम का सलूशन होगा। ये मत करिए। नैरेटिव जब अंकिता भंडारी के साथ उत्तराखंड में भाजपा सरकार में होता है तो अब आप इतनी प्रमुखता से नहीं उठाती हैं। अजय जी सुनिए, ये देश नहीं, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि देश की जनता सेंगर करता है, अजय जी नेताओं के मुंह में दही जम जाती है। अजय जी, क्या ये सब ममता बनर्जी को लाइसेंस देता है कि वो कवर अप कर सके? जब उनके अपने स्टेट पुलिस कमिश्नर ये कहते हैं कि हमसे गलतियां हुई हैं। बापू है और राम रहीम। अरे अजय जी, आप सबकी बात कर लेंगे, आप ममता बनर्जी की बात नहीं करेंगे क्या? जमानत दिलवा दी जाती है, पैरोल दिलवा दिया जाता है,
ऐसे बलात्कारियों के लिए तो बीजेपी के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठना। चलिए ठीक है, तो आपने ये कह दिया क्योंकि भाजपा गलत है, भाजपा राज्यों में भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अजय जी, पॉलिटिकल विंडेटा चलाने के लिए देखिए मुझे नहीं पता मुझे सुन पा रहे हैं नहीं सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पाने की एक्टिंग कर रहे हैं। अजय जी रुक जाइए, अब रुक जाइए। आपसे एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ कि अगर बीजेपी रूल स्टेट में क्राइम अगेंस्ट विमेन होता है, इसका मतलब है कि ममता बनर्जी के स्टेट में भी अगर इस तरह का ग्रूसम क्राइम होता है, आप उसके खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे? मुझे दुख होता है कि आप एक महिला एंकर हैं और महिला एंकरों को महिलाओं का दुख नहीं समझती हैं। अरे अब आपने ये महिला कार्ड भी खेल दिया। महिलाओं के कष्ट अजय जी अब आपने महिला कार्ड भी खेल दिया। वीडियो उसके घूमते, तब वहां सीबीआई नहीं पहुंचती है, तब वहां आपका चैनल बार बार नहीं दिखाता प्रज्वल रेवन्ना पर, अजय जी तब सीबीआई नहीं जाती है। आखिर मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी बेटी को आप किस तरह से बदनाम कर रहे हैं और पॉलिटिकल विंडेटा बनाकर उसको कभी वीडियो दिखाते हैं, कभी कुछ करते हैं। अजय जी प्लीज सर, प्लीज अब आप देखिए, अब आप उस लेवल पे गिर गए हैं सर जिसके बाद मुझे नहीं लगता कि हम कुछ भी आपको कह सकते हैं। अजय जी आप उस लेवल तक पहुंच गए। उत्तराखंड आप मीडिया पर सवाल उठाइए, आप महिला एंकर पे सवाल उठाइए, आप ये कहते हैं कि हम विक्टिम को यहाँ पर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी को लेकर एक शब्द नहीं। अजय जी ये देश तो देख रहा है ना, और ये देश याद रखेगा। अब देखिए इलेक्शन आता है ना, इलेक्शन आता है तो आपको याद होगा शीला दीक्षित जी के साथ क्या हुआ था। आप क्योंकि कांग्रेस में है, निर्भया इंसिडेंट हुआ था, पूरी देश की जनता सड़कों पर थी सर, किसी नेता ने उसका आह्वान नहीं किया था। If you remember what happened during Nirbhaya and what happened to Sheila Dikshit ji post that, in spite of the fact that she had done great development work. Let me also now